Hello everyone, welcome back. In this series of lectures, we were discussing about principles of agronomy, and so far we have covered the introduction part as well as from climate part we have studied about the atmospheric layers. Okay, so इस वीडियो सीरीज में हम लोग principles of agronomy के बारे में बात कर रहे हैं. And today we are going to start our weather elements. So we were discussing there are several weather elements that are affecting the crop growth and productivity. Okay, like there are different weather parameters, they are affecting the phytosphere, and different soil environment is also there, that is also affecting the crop growth, right? So हम इस लेक्चर में इसी पर्टिकुलर लेक्चर में बात करेंगे डिफरेंट एरियल वेदर एलिमेंट और वेदर पैरामीटर्स. बेसिकली अगर हम वेदर एंड क्लाइमेट के डिफरेंस के बीच में बात करेंगे, हम पहले भी बात कर चुके हैं. वेदर एलिमेंट्स मीन्स those elements, those atmospheric phenomena which are affecting or which are continuously acting in the atmosphere, and those are having significant influence on different organisms. Okay, like our solar radiation, then air temperature, air pressure, atmospheric pressure, wind movement, okay, relative humidity, precipitation, cloud, these are called weather elements. Okay, so पहले हम बात करेंगे आज सोलर रेडिएशन के बारे में. Solar radiation means what we are getting from the sun, and that is the sole source of energy. We know sun is the sole source of energy. Every activity or every living organism, if unless and until we get the solar radiation properly, and that is actually optimum, whatever we are getting, that is optimum for our survival. If it is below that or beyond that, then we will not survive in the earth, and all the credit goes to our atmosphere. Okay, atmosphere of the earth. So basically the harmful UV radiation, like UV radiation, that is blocked by the ozone layer or stratosphere, blocked in the stratosphere, and the thermal radiation as well as all those critical radiation, those are having harmful effect or detrimental effect on organisms. They are being filtered outside the atmosphere, or whatever UV radiation that is coming, that is filtered in our stratosphere. Okay, so whatever radiation we are getting, that is, let's say, visible radiation or infrared radiation, that is not that much harmful. Okay, so solar radiation consists of different photon molecules, that is energy carrying molecule. So all these energy carrying molecule or solar radiation, that is having electromagnetic waves. Okay, different wave bands are there. जैसे कि हम बात करते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन की बात करते हैं. अगर कोई भी रेडिएशन विजिबल रेडिएशन से कम वेवलेंथ का होता है, then that is short wave radiation. That means it is having wavelength, certain wavelength, but it is highly energetic radiation. Okay, like UV radiation, then your X-ray radiation. Okay, these are short wave radiation. Then अगर लॉन्ग वेव रेडिएशन की बात करेंगे, जैसे कि हमारा जो विजिबल रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ ज़्यादा रहता है. सो लॉन्ग वेव रेडिएशन में आपका जाएगा रेडियो वेव्स, देन इंफ्रारेड radiation. Okay, so these are long wave radiation, these are having higher wavelength but less energy. So अगर हम सोलर कांस्टेंट की बात करेंगे, सम टर्मिनोलॉजी वी आर डिस्कसिंग व्हिच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सपोज सोलर कांस्टेंट का मतलब क्या है? सपोज जैसे कि ये अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया या फिर अर्थ सरफेस हो गया, बेसिकली इट इज एटमॉस्फेयर. सो जैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एटमॉस्फेयर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 मिनट में कितना रेडिएशन या फिर कितना एनर्जी पास हो रहा है, सोलर रेडिएशन. ओके, सो दैट इज सोलर कांस्टेंट. बेसिकली इट्स वैल्यू इज 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. सो अगर हम सोलर कांस्टेंट की बात करेंगे अर्थ में, देन दैट इज 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. रिमेंबर द वैल्यू 1.94, and it varies like 1.92 to 2.02, like that it varies. So 1.94, the unit is calorie, that is the unit of energy, per centimeter square, that is the area, and per minute. So in 1 centimeter square per minute कितना energy pass करे, that is solar constant, and that should be perpendicular to the, like solar radiation should be perpendicular to the earth or atmosphere. Okay, so that is solar constant, and the value is, remember, 1.94 calorie per centimeter square minute. कभी कभी ये क्वेश्चन वाट पर मीटर स्क्वायर में पूछा जाता है, तो याद रखना 1353.98 वाट पर मीटर स्क्वायर. सो कहाँ से ये मिला? So 1 calorie per centimeter square per minute is equal to 697.93 watt per meter square. Okay, so ये conversion factor भी याद रख लेना.
and remember 10,000 lux is equal to 3.447 megajoule. Okay, now total solar radiation जितना भी आ रहा है, that is global solar radiation, that is called global solar radiation, and global solar radiation consists of direct solar radiation as well as diffuse solar radiation. ग्लोबल जितना भी टोटल रेडिएशन आ रहा है एटमॉस्फेयर में, मतलब अर्थ रिसीव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल सोलर रेडिएशन. ग्लोबल सोलर रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट सोलर रेडिएशन एंड डिफ्यूज सोलर रेडिएशन. ओके, डिफ्यूज डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली पेनिट्रेट होकर डायरेक्टली अर्थ में आ रहा है. ठीक है, डिफ्यूज मतलब अगर कोई भी सोलर रेडिएशन आके क्लाउड में स्कैटर हो रहा है या फिर एटमॉस्फेयर में आके डस्ट है या फिर एटमॉस्फेयर की कोई भी गैस है वहाँ पे स्ट्राइक होकर फिर उसके बाद गिर रहा है अर्थ सरफेस में, देन दैट इज डिफ्यूज्ड सोलर रेडिएशन. सो रिमेंबर द डायरेक्ट सोलर रेडिएशन इट कंसिस्ट ऑफ टोटल जितना भी डायरेक्ट सोलर रेडिएशन है वो कंसिस्ट ऑफ 42% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. सो व्हाट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन देन? सो दैट रेडिएशन दैट इज यूजफुल फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट. सो जो भी हमारा जैसे बायोस्फीयर है उसमें सर्वाइवल मीन्स कहाँ से, मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर कौन है? The green plants. Okay, so what is that particular physiological process that green plant does and any other plant cannot, or other organisms cannot? So that is the photosynthesis process. Okay, and for photosynthesis the vital like energy, the energy given by the solar radiation and that chlorophyll molecule that captures solar radiation. Okay, and whole electromagnetic radiation whatever coming through solar radiation like infrared या फिर UV, that cannot be used in photosynthesis. So photosynthesis, the process for which type of radiation, which electromagnetic or which wavelength of radiation is required, that is photosynthetically active radiation, or that is 400 to 700 nanometer. Okay, 400 to 700 nanometer or 4000 to 7000 angstrom or 0.4 to 0.7 micrometer. Okay, so that wavelength that is called photosynthetically active radiation, and that is less in direct solar radiation and higher in that is 65% in diffused solar radiation. and total अगर global solar radiation की बात करेंगे तो वहाँ पे 50% हमको मिलेगा क्या? photosynthetically active radiation. and this photosynthetically active radiation is measured by unit Einstein and it is measured by quantum sensor. so यहाँ पे यूनिट पूछा जाएगा तो आइंस्टाइन लिखना, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट पूछा जाएगा तो क्वांटम सेंसर लिखना. ठीक है, व्हाट इज फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन? यू क्लियर? नाउ ओल्डेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग सोलर रेडिएशन दैट इज लॉक्स. एंड हमको अभी हम बात कर रहे थे लॉक्स का यूनिट मतलब कितना वैल्यू रहता है. सो 1000 लॉक्स इज इक्वल टू 3.47 मेगाजूल. ओके, दैट इज द ओल्डेस्ट यूनिट ऑफ सोलर रेडिएशन intensity. Total incoming radiation is measured by pyranometer. So there are different different instruments installed in weather agrometeorological observatories, and the instrument that is used for in measuring the incoming radiation, that is pyranometer. The instrument that measures the reflectivity, that is albedometer. So यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, what is albedo? So that is the proportion of total radiation that is reflected back to atmosphere out of whatever amount of solar radiation that is received in the atmosphere, that is called albedo. Okay, so albedo is or reflectivity that is measured by albedometer. Now photosynthetically active radiation we have already talked ki it is measured by quantum sensor. Then direct solar radiation it is measured by pyrheliometer. Okay, now solar radiation in narrow wave band, अगर हमको सोलर रेडिएशन वेव बैंड में मतलब नैरोली मेजर करना है, देन मतलब नैरोली मतलब क्या है, जैसे कि 400 टू 410 नैनोमीटर के अंदर कितना आ रहा है सोलर रेडिएशन, 470 टू 480 नैनोमीटर, अगर नैरो बैंड में उसको मेजर करना है, देन इट इज मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर एंड इट वाज डेवलप्ड बाय इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. Sunshine recorder, two types of sunshine recorder. One is like whatever sunshine recorder used in India, that is Campbell stroke sunshine recorder, and USA measure the sunshine using photochemical sunshine recorder. Okay, now next parameter is temperature. First one is solar radiation, and in next class like next lectures when we will discuss about the weather elements and its impact on crop growth, then we will discuss another aspects of solar radiation. Okay, different based on duration, based on quality, how they are being grouped, like the crops are being grouped and how their response will be.
नाउ कमिंग टू टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है क्रॉप, मतलब टेम्परेचर का कौन सी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर इज बेसिकली द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ओके। हीट इज द एनर्जी फॉर्म, ओके, टेम्परेचर इज इट्स मेजरमेंट, सो the degree of hotness and coldness that is measured by temperature, and it is basically determined by extent of molecular activity happening in the object. So that is, so heat transfer, heat is the energy, okay. Heat transfer through different mechanism, one is conduction, then convection, then radiation, okay. So conduction में क्या होता है, ये होता है solid में generally, okay. Conduction में क्या होता है, molecular activity के through heat transfer होता है. कन्वेक्शन में क्या होता है, इट इज द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, सो सी कंडक्शन में मॉलिक्यूल टाइटली अटैच्ड बिकॉज इट इज हैपनिंग इन सॉलिड, सो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में थर्मल ट्रांसफर होता है, टेम्परेचर ट्रांसफर होता है. लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है, दिस इज जनरली फाउंड इन लिक्विड एंड गैसेस, हियर मोशन के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है, मतलब ऑब्जेक्ट या फिर मॉलिक्यूल इटसेल्फ इट इज कैरिंग द हीट एंड इट इज मूविंग, ओके. So that is how convection happen. Then radiation, it doesn't require any medium for transfer of heat. Okay. Now अगर हम बात करेंगे solar radiation reflectivity को, then when cloudiness is average, the absorption of solar radiation by Earth's surface is about 43% by atmosphere and about 22%. Okay, Earth's surface में 43% इंसिडेंट होता है, then atmosphere में about 22% and 35% reflected back to the atmosphere, okay, out of total 100% solar radiation. So less than 10% of atmospheric heating is due to direct solar radiation absorbed by the atmosphere through by water vapor, okay. So that is how why the temperature is maximum at 2 PM rather than 12 noon. So आपके लिए क्वेश्चन रहा, आप कमेंट सेक्शन में लिखो क्यों 2 PM में, मतलब हम ज़्यादा गर्मी फेस करते हैं 2 से 3 बजे ना कि 12 बजे, ओके. आपके लिए ये क्वेश्चन रहा, सो यू जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाई दिस हैपन, ओके. नाउ डायरनल टेम्परेचर वेरिएशन के अगर हम बात करेंगे, एक तो होता है टेम्परेचर वेरिएशन, दो टाइप का होता है, एक तो डायरनल टेम्परेचर वेरिएशन, मतलब कि दिन और रात के बीच में कितना टेम्परेचर वेरिएशन होता है, और एक होता है सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर. सीजनल वेरिएशन मतलब समर एंड विंटर या फिर डिफरेंट सीजन के बीच में कैसे टेम्परेचर वेरिएशन रहता है, ओके. सो डायरनल टेम्परेचर वेरिएशन जो होता है ये जनरली लेस होता है कोस्टल एरिया में, ये जनरली लेस होता है कोस्टल एरिया दैन इनलैंड. मतलब हम अगर बीच एरिया में जाएंगे या फिर कोस्टल एरिया में जहाँ पे समुद्र है, तो वहाँ पे जो वेरिएशन है दैट विल बी लेस, ओके. एंड इनलैंड जो है जहाँ पे एनी वाटर बॉडीज, लार्ज वाटर बॉडीज नहीं है पास में, सो वहाँ पे जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है दिन और रात के बीच में, ठीक है. नाउ सीजनल वेरिएशन, ये अगर हम बात करेंगे ये लेस होता है इक्वेटोरियल रीजन में. सपोज जो लैटिट्यूड हमारा जा रहा है 0, 5, ओके. आपको पता है ग्लोब में मिडिल में एक इमेजिनरी लाइन है दैट इज 0 लैटिट्यूड, ओके. लैटिट्यूड ऐसे होता है एंड ऐसे अगर लैटिट्यूड के परपेंडिकुलर में जो रहता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड. सो लैटिट्यूड जो 0 है उसी आसपास जो है सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर लेस रहता है, राइट. देन हायर द वेरिएशन इज हायर इन हायर अल्टीट्यूड, higher latitude, okay. Latitudinal temperature variation is due to incident angle of solar radiation. So latitude में टेम्परेचर कैसे वेरिएशन होता है, सो जहाँ पे मतलब जो इक्वेटर के पास में होता है वहाँ पे डायरेक्ट सोलर रेडिएशन मोस्ट ऑफ द टाइम गिरता है, ओके. एंड जब हम ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे, जैसे लैटिट्यूड बढ़ाते जाएंगे, तो वहाँ पे इंसिडेंट एंगल जो होता है वो घटते घटते जाएगा, ठीक है. तो वहाँ पे इसी के वजह से जनरली लैटिट्यूडनल टेम्परेचर वेरिएशन हैपेंस. Now vertical temperature variation is also there. That means suppose हम अल्टीट्यूड बढ़ाते जाएंगे, सो मीन सी लेवल से हम ऊपर चलते जाएंगे, तो फिर वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा ट्रोपोस्फियर में, देन स्ट्रेटोस्फियर में अगेन इंक्रीज होगा, देन मेसोस्फियर में अगेन डिक्रीज होगा, राइट. हम इसके बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी. सो यहाँ पे जो आएगा, जैसे हम अल्टीट्यूड इंक्रीज करते करते जाएंगे, मतलब ऊपर चलते जाएंगे, तो फिर टेम्परेचर गिरते जाएगा. तो वहाँ पे एक रेट है, उसको बोला जाता है लैप्स रेट, मतलब कौन सी रेट में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है व्हाइल वी आर गोइंग अपवर्ड, ओके, और व्हाइल वी आर इंक्रीजिंग द अल्टीट्यूड. सो एक होता है दो टाइप का लैप्स रेट है, एक होता है नॉर्मल लैप्स रेट, एक होता है एडियाबैटिक लैप्स रेट. नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है,
यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, मतलब हम ऊपर जाएंगे तो कितना 1 किलोमीटर में कितना टेम्परेचर डाउन होगा। सो द जनरल वैल्यू इज 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट, 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट और 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इसी रेट से टेम्परेचर डाउन होता है। एंड एडियाबैटिक लैप्स रेट जो होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से डिक्रीज होता है। सो व्हाट इज एडियाबैटिक लैप्स रेट एंड व्हाट इज नॉर्मल लैप्स रेट? नॉर्मल लैप्स रेट मतलब आप, जैसे मैं बताया कि आप 1 किलोमीटर गए तो 6.5 डिग्री सेल्सियस आपको कूल लगेगा, मतलब टेम्परेचर डाउन होगा। एडियाबैटिक लैप्स रेट में मतलब क्या होता है, जो एयर मास होता है वो जब मूव करता है उसके मूवमेंट में कितना टेम्परेचर वेरिएशन आता है। मतलब अगर यहाँ पे एयर मास है, ऊपर जा रहा है, ऊपर क्यों जाएगा? एक्सपांड होकर जाएगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है एयर मास में, वो एक्सपांड होगा, एक्सपांड होकर ऊपर चला जाएगा, लाइटर होगा। तो फिर वो अगर 1 किलोमीटर जा रहा है ऊपर तो उसमें टेम्परेचर वेरिएशन कितना आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज एडियाबैटिक लैप्स रेट इज 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। नाउ इंक्रीज इन वर्टिकल टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर विथ अल्टीट्यूड, दैट इज कॉल्ड इन्वर्सन। सो कभी कभी क्या होता है, ऐसे फेनोमेना आता है जहाँ पे इन्वर्सन होता है। दैट मीन्स जब हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटने की वजह से बढ़ जाता है, तो उसको वो फेनोमेना को बोलते हैं इन्वर्सन। नाउ सॉइल हीट फ्लक्स, दैट मीन्स द टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, टेम्परेचर हीट फ्लक्स मतलब क्या होता है? हीट एक पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर स्क्वायर मीटर कितना पर यूनिट टाइम में कितना हीट रिफ्लक्स हो रहा है और कितना हीट पास कर रहा है। सो दैट डिपेंड्स ऑन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल का अगर यूनिट बात करेंगे तो वाट पर मीटर डेप्थ पर डिग्री केल्विन ग्रेडियंट। सो एक टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होने से हीट कैसे पास करेगा, ठीक है। तो ये जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो सैंडी सॉइल में ज़्यादा होता है, एंड जब हम ऑर्गेनिक मैटर कम रहता है सॉइल में तब ज़्यादा होता है, हाई मॉइस्चर में ज़्यादा होता है, एंड लो पोरोसिटी में ज़्यादा होता है। सो ये सारे फैक्टर है अफेक्टिंग थर्मल कंडक्टिविटी। अगर टेक्सचर की बात करेंगे, सो जहाँ पे लो पोरोसिटी रहेगा वहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगा। सो जब हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे तो फिर वहाँ पे पोरोसिटी बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी घट जाएगा। ओके, सो पोरोसिटी जहाँ पे हाई रहेगा, रिमेंबर, थर्मल कंडक्टिविटी वहाँ पे कम होता है। पोरोसिटी कम रहता है तो थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। सो ये एक याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। ओके, नाउ टिलेज, जब आप टिलेज करते हो तो वहाँ पे पोरोसिटी इंक्रीज होता है, देन थर्मल कंडक्टिविटी इज डिक्रीजिंग। ओके, अगर आप सॉइल ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर रहे हैं या फिर क्ले ऐड कर रहे हैं सॉइल में तो पोरोसिटी इंक्रीज हो जाएगा तो थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये रिलेशन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। नाउ डायurnal वेरिएशन ऑफ सॉइल टेम्परेचर में बी as high as 16 डिग्री सेल्सियस एंड वेरिएशन ऑलमोस्ट स्टेबल बिलो 80 सेंटीमीटर डेप्थ। ओके, नाउ अगर टेम्परेचर यूनिट कन्वर्जन की बात करते हैं, सो अगर आपको डिफरेंट स्केल यूज करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, जैसे कि सेल्सियस स्केल हो गया, र्यूमर स्केल हो गया, केल्विन स्केल हो गया, या फिर फ़ारेनहाइट स्केल हो गया, तो उसके बीच में जो रिलेशनशिप है, अगर आपके पास डेटा है फ़ारेनहाइट में तो आप कैसे सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे? सो देयर इज ए फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। सो C/5 इज इक्वल टू F minus 32/9 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू K minus 273/5। सो दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नाउ अगर थर्मोमीटर की बात करेंगे, थर्मोमीटर मतलब क्या होता है? जो टेम्परेचर मेजर के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। थर्मोमीटर 4 टाइप का या फिर 5 टाइप का हम यूज करते हैं जनरली एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी में। So one is maximum thermometer that records maximum temperature in a day. So that is a mercury in glass type, and highest temperature, it measures the highest temperature in day and it is set in the morning. So morning में जनरली कूल रहता है टेम्परेचर, तब इसको सेट किया जाता है। और मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पर रीच होता है? 2 to 3 PM में। सो इसको हम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्यों 2 to 3 PM में होता है, क्यों 12 बजे नहीं होता है। And it is set in the morning. So next, minimum thermometer, it is, this one also important question, alcohol in glass type. Which thermometer is alcohol in glass type? That is minimum temperature. So it measures the minimum temperature in a day and it is set in the evening. So this is another question, why the temperature is minimum at before morning, why not at morning? Okay, so at before morning means 4 to 5 AM आपको मिनिमम सबसे कम टेम्परेचर मिलेगा, ना कि 2 बजे या फिर 7 बजे, ठीक है। तो ये एक अनदर क्वेश्चन है। सो मिनिमम टेम्परेचर इज लाइक अल्कोहल इन ग्लास टाइप थर्मोमीटर। देन सॉइल थर्मोमीटर, इट इज मर्क्यूरी इन ग्लास टाइप एंड इट हैविंग बेंड एट बॉल बेंड एंड मैक्सिमम सॉइल कंटेंट। सो इसका जो बॉल बेंड होता है, जनरली थर्मोमीटर का बॉल बेंड स्ट्रेट रहता है, इसका थोड़ा टेढ़ा रहता है ताकि ये सॉइल के साथ प्रॉपरली कंटैक्ट होकर एक्यूरेट डेटा दे पाए।
Next is thermocouple, that is it measures the soil temperature, like two type, thermoelectric and thermoresistant. Thermograph, it record the air temperature continuously. Another two type of thermometer is being used in agrometeorological observatory, that is wet bulb thermometer and dry bulb thermometer. इसको लेके हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में, आज दो हो गया सोलर रेडिएशन एंड टेम्परेचर, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग सोलर रेडिएशन एंड टेम्परेचर, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग अस. So any doubt you can ask me freely at any time. You can also join our Telegram channel, which is Agriculture Q&A, for update in like question answer and exam and results. Okay, so yeah, see you in the next class. Till then, have a great day.